Tabash. Oh, hallelujah. Master Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Say, Father, we come to you through our Lord Jesus Christ. Teach us your precious word. This is a word of life. God, you are my God. I believe in you. Father, I call you Father. Through your Son Jesus, your Spirit is in me. Let your word works in me. Thank you, Holy Spirit of God, what you have done in my life. Teach me today your precious word. In Jesus' name, amen. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. पहला तसल्लीकियों 5 बाब उसकी 23 आयत. Chapter 5 verse 23. पहला तसल्लीकियों chapter 5 verse number 23. Yes. Yes. Yes, please read. Yes. शांति का परमेश्वर आप तुम्हें पूरी पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे. You want to? Yes. खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आपकी रूह को बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन तुम्हारे खुदा यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे. Yes. And may the God of peace himself sanctify you through and through separate you from profane things, make you pure and wholly consecrated to God. And may your spirit and soul and body be preserved, sound and complete, and found blameless at the coming of our Lord Jesus Christ the Messiah. One more scripture, 2 Corinthians chapter 7 verse 1. दूसरा कुरिन्थियों 7 बाप उसकी पहली आयत. 7 बाप उसकी पहली आयत. Chapter 7 verse 1. Yes, please read. Yeah. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. दूसरा 7 बाप पहली आयत. 7 chapter verse 1. Yes. तो मेरे प्यारों जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें. Yes, in Urdu. बस आए अजीजों चूंकि हमसे ऐसे वाले किए गए आओ हम अपने आप को खतरा के स्वामी के साथ रहे. Yes. आपके स्पोक के साथ प्रभु को कमाल खत्म. Yes. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Yes. Today we are learning about holiness toward God.
आज हम जो सीखने वाले हैं वो है खुदा के होना, नजदीक। खुदा के नजदीक होना। So everybody, every human being who understand God, और कोई भी इंसान जो कि खुदा को समझता है, this is his desire और ये उसकी ख्वाहिश है to see God, कि खुदा को देखे, to meet God, खुदा से मिले to interact with God. और खुदा से ताल्लुक बनाए। Yes. So today we will learn और आज जो हम सीखने वाले हैं how we can meet the Holy God. तो कैसे हम मुकद्दस खुदा से मिल सकते हैं। So as we are in the life of our faith, और जैसे कि हम अपने ईमान की जिंदगी गुजार रहे हैं, we need to understand और हमें आज ये समझने की जरूरत है, before you go इससे पहले कि आप जाएं towards God, खुदा की तरफ, you need a holiness. आपको मुकद्दस होने की जरूरत है, अब पाकीज़गी की जरूरत है। Today we will learn how, और आज हम सीखेंगे कैसे, and today we learn holiness unto God. और हम देखेंगे कि पाकीज़गी खुदा तक। Hallelujah. So this is the two scriptures we take as a foundational scripture. और आज हम बुनियाद के तौर पर इन दो हवालाजात को लेते हैं। The first Thessalonians chapter 5 verse 23. और पहला थिस्सलुनीकियों chapter 5 verse 23. और उसका 5 बाब उसकी 23 आयत, And the second Corinthians chapter 7 verse 1. और दूसरा कुरिन्थियों 7 बाब उसकी पहली। Yes. So in the Jewish tradition, और जो यहूदियों के रिवायात के मुताबिक, when a girl marries to a boy, और जब एक लड़की एक लड़के से शादी करती है, when they fix the marriage, और जब शादी मुनक्किद की जाती है, what they do, वो क्या करते हैं? 1 year 1 साल for purification पाकीज़गी के लिए of the girl. लड़की की, This is the according to Jewish customs. और ये उधर के रस्म रिवाज के मुताबिक है। After a woman had been betrothed with a man, और जब उसकी मंगनी हो जाती है किसी भी मर्द के साथ एक लड़की की, after engagement और मंगनी के बाद for 1 year, 1 साल तक the girl, लड़की, she will be separated और वो अलग रहती है for 12 months. 12 महीनों के लिए। For what reason? किस वजह के लिए? The process of purification. और पाकीज़गी के अमल के लिए। Tell your neighbor virgin. और साथ वाले से कहेगा कुंवारी, Tell your neighbor virgin. और साथ वाले से कहेगा कुंवारा पानी या कुंवारी। In the Jewish tradition, और यहूदियों के रिवाज में the virginity is the most important thing in marriage. शादी में कुंवारापन बहुत अहमियत का हामिल है, In the Jewish tradition. और यहूदियों के रिवाज में। That's why Jesus gave us a parable, और इसी वजह से यीशु ने ये तमसील कही, the 10 virgins. उन 10 कुंवारियों की मिसाल दी, And the groom is coming for 5 virgins. और दूल्हा आ रहा है उन 5 कुंवारियों के लिए। Are we together? क्या मेरे साथ है? So it is very important to understand the concept of virginity. और ये बहुत जरूरी है कि आप समझे इस कुंवारेपन के कॉन्सेप्ट को So समझने के लिए। the concept of virginity is directly giving us indication concerning the holiness. और जो हमें ये कुंवारेपन का सारा का तसलसल है, ये हमें पाकीज़गी तक लेकर जाता है। Are we together? क्या मेरे साथ है? So if the girl is holy, और अगर लड़की पाक है, it means she is virgin. इसका मतलब है कि वो कुंवारी है। Are we together? क्या मेरे साथ है? So now, if you read the book of Esther, और अगर आप आस्तर की किताब पढ़ें, in chapter 2 verse 12, और उसकी दो बाब और उसकी 11 आयत, let's read. Esther chapter 2 verse 12. Quickly. The book of Esther, chapter number 2, verse number 12. Yes. No, the God. जब एक समय बारी में कि वह और राजा के पास गए, और जय उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए खिलाए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनको शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह गंधरस के लगाया जाता था, और 6 माह सुगंध रंग और स्त्रियों के शुद्ध करने का और Yes. सामान लगाया जाता था। Yes. So here is the king.
Yes, can you और read वहां it पर एक बादशाह है in English? Yes, can you loud? About to ears. About to ears. Chapter 2, verse number 12. Quickly, Now when the turn came for Egypt, louder. the God to king of Cyrus, after being 12 months under the regulations for a woman, since this was the regular period of their beautiful एक और पढ़ना, आवाज नहीं आ रही. 6 months. Quickly. Now when the turn came for each young woman, So now the turn came for each young woman. So there is a turn for every believer. और हर एक ईमानदार के लिए एक टर्म है Term means उसकी बारी आती है. Every believer have a term और हर एक ईमानदार की बारी आती है to receive holiness. कि वो पाकीज़गी को मौसूल करे Every believer has a time. और हर एक ईमानदार का वक्त है They have a time to prepare himself कि वो अपने आप को तैयार करे to see his groom Lord Jesus. अपने दुल्हा यीशु को देखने के लिए. Are we together? क्या मेरे साथ Him here is a king. He is a groom. और यहाँ पर भी एक जो है दूल्हा है और दुल्हन है Here is a groom. He is a king. और जो कि दूल्हा है वो बादशाह है And the ladies who are prepared. और औरत को तैयार किया जा रहा है For what reason? किस मकसद के So लिए that king can see ताकि बादशाह देख सके and he can choose. और वो उनमें से किसी को मुंतखब कर सके. So for the choosing of the bride, और एक दुल्हन को चुनने के लिए there is a process of 12 months और एक अरसा है 12 महीने का of holiness or वो है purification. जिसको हम कहते हैं पाकीज़गी या Yes, पाक. please. go into the king Ahasuerus after being 12 months under the regulations for the woman. Regulation. Under the regulation means consistently. और रेगुलेशन का मतलब है तसलसल से Consistently for 12 months holiness. और 12 महीनों के लिए पाकीज़गी मुसलसल. Yes. Since this was the regular period of their beautifying, 6 months with oil of myrrh, So 6 months for oil. और 6 महीने के लिए मुर्ग का तेल 6 months for oil of myrrh. और 6 महीने के लिए मुर्ग का तेल Oil of myrrh, yeah. and 6 months with species and Sweet. ointment for women. और 6 महीने के लिए फल और औरतों की सफाई की चीजों So के 6 लगाने months with sweet spices and perfumes for cleansing. और 6 महीने के लिए इत्र और औरतों की सफाई की चीजों के लगाने. Why body is so important क्यों जिस्म बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है in the ceremony of marriage? और एक शादी की तकरीब में. Are we together? क्या मेरे साथ है They are giving 12 months और वो दे रहे हैं 12 महीने for taking a young girl और एक जवान लड़की को लेने में through a process of purification. और इस पाकीज़गी के मुसलसल अमल से गुजारने के लिए. So today we will discuss और आज हम इस बारे में बात करेंगे why. क्यों. These are the natural principles. और ये जो है वो कुदरती असूल है These are natural principles, और ये कुदरती असूल है like a physical principle. जो कि कह सकते हैं कि जिस्मानी असूल. But लेकिन Apostle Paul take these principles as a spiritual principle. और लेकिन पौलुस रसूल इन जिस्मानी असूलों को रूहानी असूलों के मुताबिक ले रहे हैं. So now we will learn और अब हम सीखेंगे about this इसके बारे में. as we read the scripture. और जैसे कि हमने हवाले में पढ़ा 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Quickly. दूसरा ग्रंथियों We just read it. Chapter 7 verse 1. और उसका 7 बाब उसकी पहली है. बस आए अजीजों, Mm-hmm. क्योंकि हमसे ऐसे वादे किए गए हैं, Uh-huh. आओ हम अपने आप को हर तरह के जिस्मानी और रूहानी आलूगी से पाक करें. Mm-hmm. Oh, look at what he is saying. और देखे वो क्या कह रहा है. Yes, can you please read? पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचे. Hallelujah. हालेलुया. Please read. Having therefore these promises, dearly beloved, Mm-hmm. let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, So see, the filthiness of the flesh and the spirit. और हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें. Two things. 2 चीजें. As I said, the natural principle and the spiritual principle. और जिस्मानी असूल और रूहानी असूल. Same like 11:2.
मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कवाड़ी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं। So look at this. So ये वाला आगे था हमारा. It was there. Yes, it was there. So let's cover this. So 2 Corinthians chapter 11. Verse 2. For I am jealous over you with godly jealousy. Oh, I am jealous over you with godly jealousy. Mhm. For I have espoused you to one husband, Can you please read? that I may I have espouse you espoused you with to one husband, husband. that I may present you as a chaste virgin to Christ. So may I present you as a virgin to Christ. तुमको पाक दामन कवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं। Why virginity is important? क्यों कुंवारापन बहुत अहम है? So, are we together? क्या मेरे साथ है? Today we will learn आज हम सीखेंगे what is the filthiness of the flesh. और क्या है जिस्म की नापाकी। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Are you with me? क्या मेरे साथ है? That's why they are taking a girl इसी वजह से एक औरत को लिया जाता है and what they do. और फिर वो क्या करते हैं? 12 months of purification. 12 महीने उस पाकीज़गी और सफाई के 12 months of purification और 12 महीने सफाई के of the flesh. और जिस्मानी। Hallelujah. हालेलुया। As we see in our culture, और जैसा कि हम अपने रस्म रिवाज में भी देखते हैं, when marriage comes, जब शादी आ रही होती है the girl is going to a beauty parlor और लड़कियां जो है वो ब्यूटी पार्लर जाती हैं to do the skin treatments, और वो अपने जिल्द के ट्रीटमेंट करवाती हैं hair treatments, और बालों के ट्रीटमेंट करवाती हैं nail treatment, और नेल्स के ट्रीटमेंट करवाती हैं and all body parts treatment. और जिस्म के तमाम हिस्सों के ट्रीटमेंट बाज़-औक़ात करवाती हैं। Why? क्यों? For their marriage. अपनी शादी के But लिए। after marriage, लेकिन शादी के बाद, you can't see the girl like this. लेकिन आप शादी के बाद ऐसा नहीं देखेंगे उसकी जिंदगी। What? क्यों? The same procedure. और वो ही तमाम अमल, Because she did that procedure before marriage. और क्योंकि उसने ये सारा काम शादी से पहले किया So that the husband can see and be pleased. और ताकि हम देखे और खुश हो। Hallelujah. हालेलुया। So this is the same procedure. और वो ही तमाम अमल, When we follow to prepare our life, और जब हम पैरवी करते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को तैयार कर सकें, that procedure is called holiness. और इस सारे अमल और सलसल से इस अमल को कहते हैं पाकीज़गी। Are you ready to follow holiness? क्या आप तैयार हैं आज पाकीज़गी की पैरवी करने के Are लिए? you ready to remove filthiness of the flesh? और आप क्या आप तमाम जिस्मानी गंदगी को उतारने के लिए तैयार हैं? What is filthiness और क्या होगा ये नापाकी of the flesh? और जिस्म की नापाकी? So according to Bible, कलाम के मुताबिक, the flesh means shame and disgrace. और जिस्म का मतलब है शर्मिंदगी Yeah. Disgrace. और बेइज्जती। Yes, disgrace. So if you read, I have many scriptures. और बहुत कलाम के हवाला जात हमारे पास मौजूद है। Whenever you read the word called flesh, और जब कभी आप लफ्ज फ्लैश पढ़ें, जिस्म पढ़ें, whenever you read word flesh, और जब कभी आप लफ्ज जिस्म पढ़ें, take that verse very seriously. और उस आयत को बहुत ज्यादा एहतियात से इस्तेमाल करें। Why? क्यों? Because every verse क्योंकि हर एक आयत of the flesh जो कि जिस्म के बारे में है, have a different meaning. उसका अलग से मतलब है। So if you read in Ephesians, और अगर आप इफ्सियों में देखें, the word filthiness explains the shame and disgrace. और जो लफ्ज नापाकी है वो यहाँ पर शर्मिंदगी और बेइज्जती को जाहिर करती है। But लेकिन in James, लेकिन अगर आप याकूब के खत में पढ़ते हैं, it is called a moral impurity. और इसको कहा जाएगा इखलाकी नापाकी। Yes, some people are morally dirty. कुछ लोग जो है वो इखलाकी नापाक है। How many people sees the moral values are not there? और कुछ लोग क्या देखेंगे कि माशरती इक़्तिदार नहीं है। They don't respect others. वो दूसरों की इज्जत नहीं करते। They speak towards elders. और वो बड़ों के खिलाफ बोलते हैं। They speaks to the authoritative people. और वो इख्तियार वालों के खिलाफ बोलते हैं। Even they speak
against pastors. और हत्या के वो पास्टर्स के खिलाफ बोलते हैं। What does it mean? और इसका मतलब क्या हुआ? This is called a filthiness, और ये होगा नापाकी। but it is not same filthiness as it is written in Ephesians. और जैसे कि इफिसियों में बताई गई है वैसी नापाकी नहीं है। So write down the first filthiness is called the Iscariots. और पहली नापाकी को हम कहेंगे Write down Iscariots. एस्क्रियोट्स। So this is a filthiness which we call shame and disgrace. और ये वो नापाकी है जिसको हम कहेंगे बेइज्जती। Let me explain this. और आए मैं इसको वादिया करूं। The girl will fast और लड़की ने रोजा रखा and the boy will fast और लड़का भी रोजा रखेगा and the believer will fast. और एक ईमानदार भी रोजा रखेगा Pray regularly, और बहुत बाकायदगी से दुआ होगी study the word, और कलाम को पढ़ा जाएगा। but still लेकिन फिर भी he will be a victim of shame. वो नापाकी के गवाह हैं They are victim. और वो वो उन पर इल्जाम इल्जाम है They are victim, yeah. और वो इल्जाम Can I get शुदा a है। witness? Did you see a people who fast, और आपने क्या उन लोगों को देखा है जो रोजा रखते हैं, who pray? दुआ करते हैं No. Who fast, who pray, who go to church, they give money to the church. और वो चर्च जाते हैं और वो हदिया जात देते हैं चर्च में They do everything, और वो हर एक काम करते हैं, but still disgrace. लेकिन फिर भी वो बेइज्जत होते हैं। Hello? What is an issue? क्या है मसला? This is called the filthiness of the flesh. और ये होगा जिस्म की नापाकी This kind is called this one. और ये किस्म इस तरह की होगी। Many people, they don't have answer. और Why कितने लोग I हैं, am suffering? क्यों जिनके पास आज जवाब नहीं कि क्यों वो मुश्किल में है, Because they need to understand holiness. क्योंकि उन्हें जरूरत है समझने की पाकीज़गी की। Second word, और दूसरा rahuparia. रखूपारिया Rahuparia is a Greek word. और ये एक इब्रानी It is also used for filthiness. और इसको हम कह सकते रखूपारिया। हैं कि ये लफ्ज इस्तेमाल होता है It's used in James chapter 1 verse 21. और ये जो है याकूब उसका पहला बाप उसकी 22 आयत में इस्तेमाल हुआ है। When the word is equally explained, और जब लफ्ज ऐसा हो कि जिसको जब हर लफ्ज बराबरी के साथ बयान किया जाए, और जब हर लफ्ज बराबरी के साथ बयान किया जाए, then you can understand Bible. तब आप कलाम मुकद्दस को समझ सकते हैं। Flesh is flesh, और जिस्म तो जिस्म है, but Bible explain it according to the context. और लेकिन कलाम मुकद्दस इसको बकायदा बयान करती है समझ के साथ। First filthiness, और जो पहली नापाकी है it's called a shame and disgrace. और जिसको हम कहेंगे कि बेइज्जती, And Ruhuparia और is called what we learned before. It is called a moral impurity. और दूसको हम कहेंगे गैर इखलाकी इकदार। These are two now. और ये दो किस्म Let's की go होगी। number 3. और तीसरी पे चलते हैं Manusmos. और जिसे हम कहेंगे मौलूस मोस Manusmos is also a filthiness. और वो भी नापाकी की किस्म है। What is this? ये क्या है? It is written what we read in 2 Corinthians chapter 7. और जो कि हमने दूसरा ग्रंथियों उसके 7 बाब में पढ़ा, What is this? ये क्या है? Soiling the clean. There is a dirt on your skin. और अगर आपकी जिल्द के ऊपर गंदगी है When you clean it, और जब आप इसे साफ करते हैं that dirt, और ये जो मिट्टी है that dirt is called a molusmos. और इस मिट्टी को कहेंगे मौलूस मोस। This is another kind of cleansing. और ये एक और किस्म है पाकीज़गी की। When you get cleansed by the baptism of water, जब आप पानी के बपतिस्मे के बाद साफ हो जाते हैं you cleanse molusmos. और आप साफ हो जाते हैं Now मौलूस the मोस के dirt is मुताबिक over now. और अब हर तरह की मिट्टी गंदगी आपके जिस्म में उतर The गई other kind of filthiness is still there. और लेकिन दूसरी किस्म की नापाकी अभी भी मौजूद है That comes and that delete or that escaped through holiness. और वो पाकीज़गी से आपके जिस्म से खत्म होगी। You need to follow holiness. तो आपको जरूरत है आज पाकीज़गी की पैरवी करने There की are areas there. और वहां पर भी मुख्तलिफ And number एरियाज 4, हैं। और चौथे नंबर पर aselegia. Number 4, aselegia. चौथे नंबर पर ऐसे लगी This is another kind of filthiness. और ये एक और किस्म है नापाकी की। What is this? ये क्या है? What is this? ये क्या है? Are we together? क्या आप मेरे साथ है? This filthiness comes under a pride. और ये आती है गरूर के जिम्रे में। When you become prideful, और जब आप में गरूर आ जाता है you are already disgraced. तो आप पहले ही बेइज्जत हो चुके हैं Already disgraced in the eyes of God. और आप खुदा की नजर में पहले ही आपकी इज्जत नहीं रही। You already
filthy now. और आप पहले ही नापाक हो चुके हैं। Are we together? क्या आप मेरे साथ है? Did you understand the filthiness now? और अब आपको समझ आया उस नापाकी की वजह? Now, how we can know और कैसे हम जान सकते हैं that we are filthy? कि हम पाक हैं? What are the manifestations of the works of the flesh? और क्या है काम जिस्म के अंदर चीजों का ज़हूर होने का? When things are happening in your body, जब आपके जिस्म में चीजें वकूअ पजीर होती हैं, let's read now. आए हम पढ़ते हैं। Number first thing पहली चीज is hands. वो है आपके हाथ। Now lift up your hands. अपने हाथों को उठाइएगा। Whenever I say lift up your hands, और जब कभी मैं कहूँ कि अपने हाथों को उठाएं, please take it very serious, और इसे बहुत संजीदगी से लें, because hands are the main point क्योंकि हाथ मेन पॉइंट है where God can see your holiness. जहाँ पर खुदा आपकी पाकीज़गी को देखता है। You are under test और आप टेस्ट के अंदर हैं when you lift up your hands. जब आप अपने हाथों को उठाते हैं। No, I learned in the prophetic ministry. और मैंने नबूवती मिनिस्ट्री में मैंने सीखा, When you say lift up your hands, तो जब आप कहते हैं कि अपने हाथों को उठाइएगा, one day एक while I दिन was preaching, जब मैं कलाम सुना रहा था, and when I say lift up your hands, और जब मैंने कहा अपने हाथों को and उठाइएगा, I saw the blood on the hands of a man, और मैंने एक शख्स के हाथों पर खून देखा, and I asked the Lord, और मैंने खुदा से कहा, and the Lord showed me that these hands are filthy hands. और खुदा ने मुझे दिखाया कि ये हाथ नापाक है। So how God revealed me if I don't say lift up your hands? ऐसे खुदा मुझे दिखाता अगर मैं ये ना कहता कि अपने हाथों को उठाइएगा। Let's read now. और आए अब हम पढ़ते हैं Put it down. Let's read now. Psalms 24, verse 3 ज़बूर and 4. 24। Oh, kanama shandana makiyata. The presence of God is not a joke. और खुदा की मौजूदगी, खुदा की हुजूरी कोई मजाक नहीं है, It is not a joke. ये मजाक नहीं है। Yes, read. खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़े Yes. और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? Mm-hmm. वही जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है, Mm-hmm. जिसने बतालत पर दिल नहीं Mm-hmm. और मक्कर से कसम नहीं खाई। Who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in his holy place? He who has clean hands. Who has clean हैंड्स, hands. हिंदी में पढ़ेंगे. अजवाबे के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पीपल स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? आगे वही जिसके जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाई और ना कब से शक दिखाई है। जिसके हाथ क्या है? जिस- चार अर्थ, चार. जिसके काम निर्दोष काम. जिसके काम यस. जिसके काम, हिंदी कह रही है काम. Hands. So hands represent a work. और हाथ जाहिर करते हैं काम को। When I say lift up your hands, you are already under test. और जब मैं कहता हूँ कि हाथों को उठाएं तो आपका जायजा लिया जा रहा है So your works are already been there. और आपके काम उसके सामने हैं। No. Are we together? क्या आप मेरे साथ हैं? In the scripture. और कलाम के मुताबिक, So the first manifestation of the flesh is hands. और जिस्मानी तौर पर जो पहला ज़हूर पजीर चीज होती है वो है आपके हाथ। I know you read Jesus very well. और मैं जानता हूँ कि आपने यीशु को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। The Bible says कलाम कहता है Jesus lays his hand और यीशु ने अपने हाथ उनके ऊपर रखे, on many. बहुत सौ पर। Tell me what happens. फिर मुझे बताएं क्या हुआ। Cripple walk, और जितने लंगड़े थे वो चलते थे blind see. और अंधे देखते थे। What are the works? और क्या है काम ये हाथों के? Hands carries a works. और हाथ उठाए हुए हैं काम। Are we together? क्या मेरे साथ? So the manifestation of the flesh is through hand. और जिस्म के अंदर जो तब्दीली या ज़हूर पजीरी होती है वो हाथों के जरिए। Check your life. अपनी जिंदगी को चेक करें Which works you are doing through the hands और कितने काम है जो अपने हाथों से आप करते हैं towards God. खुदा के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Are we together? क्या मेरे साथ है? There's a story in the Bible. और कलाम मुकद्दस में एक कहानी है। Who will tell me? कौन मुझे बताएगा? Who will tell me? कौन मुझे बताएगा? When God said, "You will not build your hand, build the temple, because your hands are not good."
और यीशु ने जहाँ पर कहा है कि कौन हैकल को, God said. और खुदा ने कहा कि हैकल को कौन तामीर करेगा, God said, you will not build a temple और तुम because, हैकल को तामीर ना करोगे because your hands are not holy. Huh? हाथ पूजन होता है You गाँव से करा story I asked them. ओके No. So God said, और खुदा ने no, कहा no, no, no. You are my beloved, और तुम मेरे प्यारे हो David, दाऊद, according to my heart. और मेरे दिल के मुताबिक, But लेकिन you can't build. तुम नहीं तामीर कर सकते। Why? क्यों? Your hands are full of blood. और तुम्हारे हाथ खून आलूदा है। What is the value of the hands? और हाथों की अहमियत क्या है? First manifestation. और पहली ज़हूर पजीरी। If you want to see और अगर आप देखना चाहते हैं holy hands, मुकद्दस हाथ, you will see आप देखोगे when they will lift and when they will lay, और जब वो उठाए जाते हैं और जब वो रखे जाते हैं they will do something. और वो हाथ कुछ करते हैं। Hello? Who lifted hand for you? कौन आपके लिए हाथ उठाएगा And who lay hand on you? और कौन आप पर हाथ रखेगा? That depends. और ये मुनस्सर करता है, Holiness or filthiness. और ये पाकीज़गी पर और नापाकी पर मुनस्सर। Hello? Are you with me? क्या मेरे साथ है? So hands are the main thing there. और यहाँ पर जो हाथ है वो अहम चीज है, It's a practical reality. और ये एक अमली हकीकत है। That's why the God said, और इसी वजह से खुदा ने कहा, who will stand और कौन खड़ा होगा in my presence मेरी हुजूरी में or holy place? और मेरी मुकद्दस जगह पर? That man, और वो शख्स his hands are clean. जिसके हाथ साफ हैं। Hallelujah. हालेलुया। हाथों को उठाइए। Father, I pray. I declare in the life of their lives. मैं की जिंदगी में जिंदगी बोल रहा हूं. I declare life in the life. In the mighty name of Jesus. Amen. Oh Lord, I declare, let the holiness comes in the hand. आमीन, आमीन, Let the blood of Jesus cleanse their hand. आमीन, Whatever they touch, it will be prospered. आमीन, Whatever they touch, it will be increased. आमीन, In the name of Jesus. आमीन। Hands speaks for works. और हाथ कामों का बयान करते हैं। Anytime you go किसी भी वक्त अगर आप जाएं in the presence of God, खुदा की हुजूरी में, when you lift up your hands, जब आप अपने हाथों को उठाते you're हैं, not lifting hands. और आप हाथों को नहीं उठा रहे, You are lifting your works, what you have done. आपने जितने काम किए आप उनको उठा रहे हैं, God can see easily और खुदा बहुत आसानी से देख सकता है what you have done. आपने क्या किया है। Hallelujah. हालेलुया। If you see Jesus was walking on this earth, और अगर आप देखें कि यीशु इस जमीन पर चल रहा है what he did और उसने क्या किया, in the life of Jesus, और यीशु की जिंदगी में, he used his hand. और उसने अपने हाथों को इस्तेमाल किया। किस लिए? Number one, पहले नंबर पर to heal the sick. ताकि वो बीमारों को शिफा दे। Luke chapter 4:40, he lay his hand to heal और the sick. लूका 4:14 के मुताबिक उसने बीमारों पर हाथ रखे और उन्होंने शिफा पाई। 10:13, और मरकज 10:13, he used his hand to bless children. और उसने बच्चों को बरकत दी अपने हाथों से। Are you using your hand to beat your children or using your hand to bless your children? अपने हाथों को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? बच्चों को मारने के लिए या बरकत देने के लिए? Today, take this very serious. और आज इसको बहुत ज्यादा सीरियस लें, Because Jesus used his hand to bless children. और यीशु मसीह ने अपने हाथ इस्तेमाल किए बच्चों को बरकत देने के लिए। Chapter 10, verse 38. और अमाल उसका 10 बाप उसकी 38 आयत, The Bible says he went out and he was doing good. और वो जाता भलाई के काम करता. और वो बाहर जाता और भलाई के काम करता। Let us therefore cleanse our hands of every unrighteous work. आए हम आज अपने हाथों को पाक करें हर नाराजगी के काम से. Hello, are we together? Because toward God, क्योंकि खुदा की तरफ when you enter, जब आप दाखिल होते हैं, before you pray, इससे पहले कि आप दुआ करें, hands are already praying. आपके हाथ पहले ही दुआ करें। Why are you always saying, lift up your hand? और क्यों हमेशा कहा जाता है कि हाथों को उठाइएगा? It's not me. God can see you और ये मैं नहीं हूँ, खुदा आपको देख सकता है through your hands. आपके हाथों के जरिए। Because hands, क्योंकि हाथ God given to you, जो कि खुदा ने आपको दिए हैं, that are not hand, that are works. और ये हाथ नहीं, ये काम है Any आपके। work you are doing, that is by hand. और कोई भी काम अगर आप करते हैं वो हाथों के जरिए, This is the first thing. और ये पहली चीज है। Manifestation और ज़हूर पजीरी of the flesh. जिस्म की, You can see आप देख सकते हैं the hands of people.
लोगों के हाथों को, through their works. उनके कामों के जरिए, How much they are blessed. कितने ज्यादा वो बबरकत है, How much they are holy. कितने ज्यादा वो पाकीज़ा है। They will pray, they will fast, they will do everything. और वो दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, वो सारे अच्छे काम करते हैं, But you can see them लेकिन आप उन्हें देख सकते हैं by their works, उनके कामों के जरिए से to their hands. और उनके हाथों से। How many people you raised? और कितने लोगों को आपने आज खड़ा किया है, What you have done. और क्या किया आपने अपनी जिंदगी में, That is called holiness. और ये कहलाएगा पाकीज़गी। What have you done? क्या आपने किया है। The second thing दूसरी चीज, is speech. और वो है बोलना, Second thing is speech. और दूसरी चीज है आपका बोल। Number one is hand. पहला हाथ, Number two is speech. और दूसरा है आपका बात करना या Second बोलना, Timotheus और दूसरा तिमोथियस chapter 2 verse 16. Yes, please. दूसरा तिमोथियस 2 बाप उसकी 16 है, लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज करो, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे। Yes, can you read this? हिंदी को पढ़िए. पर शुद्ध बकवास से बचा रहे। Can you please read loud? शुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी भक्ति में बढ़ते जाएंगे। Into two. लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे। Ungodliness. और बेदीनी. बेदीनी Ungodliness. और बेदीनी Unrighteousness. और नारास्ती, It comes by your speech. और ये आपके बोलने से आती है। But avoid all empty, vain, useless, idle, for it will lead people into more and more unholiness. Your speech will lead people to unholiness. और आपका बोलना लोगों को नापाकी में लेके जा सकता है। Hello? Tell your neighbor, अपने साथ वाले से कहिए, shut up. जुबान को बंद कर। Yes, tell them. Tell your neighbor, अपने shut साथ वाले से up. कहेगा कि अपनी जुबान को बंद कर। For what? किस वजह से? Don't speak filthy things. और गंदी चीजें या बेहुदा चीजें मत बोल। Hallelujah. हालेलुया। Can you imagine? क्या आप इस बात का तसव्वुर कर With the सकते हैं? same mouth, और इसी मुंह के साथ, you are saying, God, I love you. और इसी मुंह से आप कह रहे हैं, खुदा मैं तुझे मोहब्बत करता हूँ, Father, I love you. और बाप मैं तुझे प्यार करता हूँ, And you're praising Jesus. और आप खुदा की तारीफ करें। And with the same mouth, और इसी मुंह से what? आप बकवास भी कर रहे हैं. और आप बकवास भी कर रहे हैं। Hello? Yes, it is. ये आपकी बाइबल में लिखा है. I'm not saying it. ये आपकी बाइबल में लिखा है. Hallelujah. हालेलुया। Try to be silent. और कोशिश करें कि खामोश रहें, Yes. Try to practice more silent. और कोशिश करें कि जितना खामोश रह सकते हैं। When you try it, और जब आप कोशिश करेंगे, you are making your mouth holy. You are making your speech holy. तो आप अपनी जुबान को और मुंह को आप पाक बना रहे हैं। 1 Timothy chapter 4, और पहला तिमोथियस 4 बार verse 7. और उसकी 7 आयत। लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों किसी कहानियों से किनारा कर और दीनदारी के लिए रियाजत कर। After the holiness, और पाकीज़गी के बाद, I will start a series on godliness. और उसके बाद मैं दीनदारी सिखाऊं, Yes, we will study this. और हम फिर इसके बारे में सीखेंगे। Are we together? क्या आप मेरे साथ हैं? What he is saying now? और क्या कहा जा रहा है? Yes, read it. पर शुद्ध और बुरी किसी कहानियों से लग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर। Yes. और do. लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों किसी कहानियों से किनारा कर और दीनदारी के लिए रियाजत कर। There is a word called the stories of old wives. और यहाँ पर लफ्ज यूज हुआ है बूढ़ियों किसी कहानियां। Hello? Do you know what is this? Why Bible is saying? पूरा खोल दो. Why the Bible is saying? क्यों कलाम मुकद्दस कह रहा है? Why?
क्यों? Let's see. आए देखते हैं. Let's see. So the word for profane, और लफ्ज प्रोफेन it is a word called. Let me explain. The word profane in Greek is bebelos, which means जिसका मतलब है bebelos is that which lacks all relationship जो खो देता है अपने तमाम रिश्ते or affinity to God. और खुदा खुदा से के नजदीक होना. और खुदा के सामने बुरा. Bebelos. Bebelos. We will just study 3 words. Profane, vain, babbling. बुरे बोलना. क्या लिखा है इसमें उर्दू में? और बेहुदा. बेहुदा. Vain babblings. और कौन सी? बुढ़ियों किसी कहानियों से बुढ़ियों किनारा किसी कर. कहानी. ये तीनों लफ्ज देखे क्या है? What exactly word are they? And the vain babbling in Greek is kenophonia. 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 Which means empty discussion. और जिस बातचीत का कोई फायदा नहीं है, Empty discussion. जिसके बाद हालीपन महसूस हो. Hardly गुफ्तगू. If you sit with a person और and अगर he's giving and he's doing conversation with you without any reason, और अगर आप किसी शख्स के साथ बैठे और वो आपसे बातचीत शुरू करेगा बगैर किसी वजह के, and that conversation you are having with him, और जो भी बातचीत आपकी उसके साथ हो रही है and that is so empty. और वो बिल्कुल खाली है किसी It's भी empty. मकसद के There बगैर is no point there. और just बगैर conversation. मकसद के सिर्फ बातचीत. This is called a vain babbling. और इसको हम कहेंगे वेन बेबलिंग, बूढ़ियों की सी No, कहानियां. no, no. Vain babbling. बेहुदा. बेहुदा. Empty discussion. खाली बातचीत. Number 2, the same meaning is useless subjects. और नकारा How many people मजमून. experience this kind of people? और कितने लोगों ने ऐसे लोगों के साथ बात की है 2 months ago, they fight with someone, और 2 महीने पहले वो किसी से लड़े हैं and now they are discussing with you. और अब वो आपके साथ इस बारे में बात कर रहे हैं I don't answer them. और मैं उनको जवाब नहीं देता I don't want to be a part of this conversation. और मैं इस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनना चाहता. Why? क्यों? This thing will lead me to ungodliness. और ये मुझे बेदीनी में लेकर जाती है. I declare, let God deliver you today. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. This is called vain babbling. और इसको कहेंगे वेन बेबलिंग. How many people are ready to remove this kind of conversation today? और कितने लोग तैयार हैं आज इस किस्म की गुफ्तगू से परहेज करने This के is लिए. called vain babblings. What does it mean? It means useless subject और बेमकसद without reason. मजमून, किसी भी वजह के बगैर. It happens yesterday. और ये कल हुआ था Still you are discussing. और हत्ता कि आप अभी तक ये बातचीत कर रहे हैं. And then number 3 और तीसरे नंबर पर is called fables. और इसको कहेंगे फेबल It's called muthos. और जो कि कहलाता है मुथोस. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? Speech. बोलना. It is used for a story. और ये कहानियों के लिए इस्तेमाल होता है. False story. झूठी कहानियां. False story. झूठी कहानियां. When people speaks with you, और जब लोग आपसे बात करें बेहुदगी इसको कहते हैं. False story is called fables. और जो झूठी कहानियां हैं वो बेहुदगी कहलाती हैं. How many people experience the false story? और कितने लोगों ने झूठी कहानियों का एक्सपीरियंस They किया है. talk with you with false stories. When you find it, there is one story there. और कोई आपको कहानी सुनाता है लेकिन जब आप जानते हैं तो पता चलता है ये झूठी कहानी. And what is ungodliness? और क्या होगा बेदीनी? In Greek, it is called esebia. और इसको ग्रीक में कहेंगे असेबिया. It is called irreverence. 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 इसको कहेंगे इररेवरेंस. Yes. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? Are you with me? Number 3 तीसरे नंबर पर is called a body. और जिसे कहेंगे जिस्म. So speech and hand are too important. और हाथ और मुंह तो बहुत ज्यादा अहम है. And number 3 is whole body. और तीसरा होगा आपका पूरा जिस्म. Whole body. पूरा जिस्म. Body. पूरा जिस्म. Are we together? क्या आप मेरे साथ है? I'm just giving you scripture. We will finish. और 1 Corinthians chapter 6 verse 13 to 18. Write down this scripture just. Let me read. पहला करंथियों जल्दी से इसको पढ़ दे. पहला करंथियों 6 बाब 13 से 18. 1 Corinthians chapter 6
verse 13 to 18. खाने पेट के लिए है और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको और उनको नीस्त करेगा, मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं, What? बदन हरामकारी के लिए नहीं, बदन हरामकारी के लिए नहीं है, body is not for fornication. बदन हरामकारी के लिए नहीं है, बल्कि खुदावंद के लिए है और खुदावंद बदन के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Mhm. और खुदा ने खुदावंदों को भी जिलाया Mhm. और हमको भी अपनी कुदरत से जिलाएगा। Mhm. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर कसबी के अज़ा बनाऊं? हरगिज नहीं। Mhm. क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबी से सोबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। और जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूह कुदुस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। Amen. आमीन। Now there are 17 works of the flesh, और यहाँ पर 17 किस्म के काम किस्म के। जिस्म के दिखाए हैं, but 4 लेकिन 4 of the 17 17 में से are the sins against body. जो कि जिस्म के खिलाफ गुनाह है, 4 are against body, और 4 जिस्म के खिलाफ है। not towards God. खुदा के नहीं, कि अपने जिस्म के। You are doing sin against your own body. और आप अपने जिस्म के खिलाफ गुनाह कर रहे हैं, You are making your body unholy. और आप अपने जिस्म को नापाक कर रहे हैं। Hello, can I teach this for? Number 1 is adultery. और पहला होगा Adultery. Badkari. Adultery. बदकारी। Let me explain. मैं इसको वाज़ेह करूं। Any sexual relationship between married people, but not with their own spouse. और किसी भी शख्स का जो एक शादीशुदा जिंदगी का रिश्ता है किसी ऐसे शख्स से हो जिसके साथ उसकी शादी ना हुई हो। This is for married people. Adultery is different from fornication. और ज़नाकारी जो है और बदकारी मुख्तलिफ है। Fornication, और जो ज़नाकारी है it is for unmarried people. और वो है गैर शादीशुदा लोगों के लिए। But adultery, लेकिन हरामकारी, it is for married people who married और जितने लोग शादीशुदा हैं and they're still doing sex with other women. और जो दूसरी औरतों के साथ ज़ना कर रहे हैं, They are doing adultery और वो बदकार है। against your own body. और आप अपने जिस्म के खिलाफ गुनाह कर Let रहे हैं। me give you consequences. और आए मैं आपको इसकी कुछ वजूहात बताऊं, Consequences. इसके असरात असरात बताऊं, Your body will suffer. और आपका जिस्म इसको भुगतेगा। You will feel many diseases और आप बहुत ज्यादा जिस्मानी तौर पर बीमारियों को झेलेंगे because of this. इस वजह से। You did against your own body. Let God forgive you. और आपने अपने जिस्म के खिलाफ गुनाह किया, इसलिए खुदा आपको माफ करे। May get an amen. आमीन। ये नहीं माफ होना चाहिए. Let God forgive you. और खुदा आपको माफ करे। Hallelujah. Hallelujah. Adultery. और हरामकारी, It is for married one. और ये शादीशुदा लोगों के लिए है। When the person is already married और एक शख्स पहले ही शादीशुदा है and he is still doing a physical relation with others. और अगर वो जिस्मानी ताल्लुक किसी और से कायम कर रहा है, Adultery. और इसको हम हरामकारी कहते हैं। Number 2. और दूसरे नंबर पर Total are 17. और 17 है मुकम्मल, But second one और दूसरा है is fornication. और वो होगा ज़नाकारी। It is a sexual relationship between unmarried people. और ये होगा गैर शादीशुदा लोगों When का the रिश्ता। people do sex before marriage, और शादी से पहले अगर आप ज़ना करते it's हैं called fornication. तो इसको हम कहेंगे ज़नाकारी। Number 3 और तीसरे नंबर is called uncleanness. और इसको कहेंगे नापाकी। Uncleanness. और इसको कहेंगे नापाकी। What is in it? और इसका मतलब क्या है? Number 1, पहला, homosexuality. एक जिन्स की तरफ जना करना. You see, man is marrying with man. और आप देखेंगे कि एक मर्द मर्द से शादी कर रहा है और औरत औरत से। And number 2 is lesbianism. और दूसरा होगा औरतों का औरतों के साथ ताल्लुक। And number 3, और तीसरे नंबर पर bestiality. Bestiality ऐसे बोल. Bestiality. बेस्टियलिटी। What is this? ये क्या है? Sexual relationship between men and animals. जानवरों के साथ जिस्मानी ताल्लुक। This is bestiality. और इसे कहेंगे बेस्टियलिटी। This is called uncleanness. और इसे कहेंगे नापाकी। Can I tell you? क्या मैं आपको I बताऊं? saw many people, they live their whole life with animals. और मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो अपने इस They said we don't need wife or husband. I have my pet.
That's bad. Include your pet. और कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हम अपने पालतू जानवर के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, Uncleanness. और इसको कहेंगे नापाकी। Hello. Number 4. चौथे नंबर पर Number 4 is lasciviousness. Lasciviousness. It is you can say lustfulness. और ये होगा Havas. हवस। Lustfulness. These 4 ये चार are the हैं। major sins towards your body. और ये चार गुनाह आपकी जिस्म के खिलाफ गुनाह है जो बड़े हैं। Put your right hand on your head. और अपने दाएं हाथ अपने सर पर रखें। Father, I pray in the mighty name of Jesus. बाप यीशु के नाम से बाप यीशु के नाम से I declare any kind of body sin और कोई भी जिस्मानी गुनाह है you did to your own body, जो हमने अपने जिस्म के खिलाफ किया है, let the blood of Jesus speak और खुदा का खून बोले for me, मेरे लिए, for my body. मेरे जिस्म के लिए, My body be cleansed, और मेरा जिस्म साफ हो, be healed और मेरा जिस्म शिफा पाए in Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन Amen. आमीन। Are we together? क्या आप मेरे साथ है? So take this scripture, और इस हवाले को ले the Galatians chapter 5 गलतियों 5 बाब and verse number 16. Go and read. You will find 17 fleshly filthiness. और आप 17 किस्म के जिस्मानी गुनाह देखेंगे। Yes. गलतियों 5 बाब Verse number 16. 16 आयत। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, बुतपरस्ती, नाच रंग, you will find everything there. Are we together? Next time we will discuss filthiness of the spirit. और हम रूह की नापाकी के बारे में बात करेंगे। Today we just discuss the body, और आज हमने सिर्फ जिस्म की बात की है, hand, mouth, and whole body. और हाथ, मुंह और पूरा जिस्म। Before you see the Holy God, और इससे पहले कि आप मुकद्दस खुदा को देखें, let's और आए हम अमली तौर पर उस पाकीज़गी को अमल में लाएं, let's pray. और आए हम दुआ करें, Let's pray. और आए हम दुआ करें, Let's pray. आए हम। How many people are ready to practice holiness? और कितने लोग तैयार हैं अमली तौर पर पाकीज़गी को अपनाने के लिए? Holiness of the hand, अपने हाथों की पाकीज़गी, the holiness in the work, काम में पाकी, काम में पाकीज़गी, holiness in speech, और बोलने में पाकीज़गी, holiness of the body, और जिस्म की पाकीज़गी, the mind, और ज़हन की पाकीज़गी, and the spirit. और रूह की पाकीज़गी। Ora pashandere basa. Ora mama mama sharana mandeza. Maru shefe targe khatan. Lift up your hands. अपने हाथों को उठाइए Say, Oh Lord, और कहिएगा खुदा make me holy मुझे पाक बना as you are holy. जैसे तू पाक है। Oh Lord, ओ मेरे खुदा make me holy मुझे पाक बना as you are holy. जैसे तू पाक है। Oh Lord, ऐ खुदा make me holy मुझे पाक बना as you are holy. जैसे तू पाक है। Jesus. यीशु से बात कीजिएगा Confess और अपने गुनाहों की माफी गुनाहों का इकरार कीजिएगा, whatever you have done in और past, जो कुछ भी आप माजी में कर चुके हैं, whatever you speak, और जो कुछ आप बोल चुके हैं, whatever you touch, और जो कुछ आप छू चुके हैं, whatever you misuse your body, अगर आपने अपने जिस्म का गलत इस्तेमाल किया है, let God deliver you. और खुदा आपको रहाई Talk to him. और उससे बात करें।